أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، آج کے اس موضوع میں ہم سماعت اور بصیرت پر روشنی ڈالیں گے، اور وہ بھی ایک آیت قرآنی کے زیر سایہ، یعنی سمع اور بصر، یعنی سننا اور دیکھنا۔ ممکن ہے اس موضوع کو سننے کے بعد کچھ لوگ کہیں کہ سننا اور دیکھنا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بارے میں جاننے کی، ہمیں تو پتہ ہے سننا کسے کہتے ہیں اور دیکھنا کسے کہتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو ہمارے دماغوں میں سننا ہے یا جو ہمارے دماغوں میں ہے کہ دیکھنا کسے کہتے ہیں، ممکن ہے قرآنی مفاہیم کی نظر میں اسے سننا اور دیکھنا نہ کہا جاتا ہو۔ ہم اسی درس میں پہلے سننے کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر بصر یا دیکھنے پر روشنی ڈالیں گے۔ سماعت سے ریلیٹڈ ہمیں ایک جملہ ملتا ہے اور اسے کہتے ہیں لسننگ از این آرٹ، یعنی سننا ایک فن ہے، سننا ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے۔ یہ ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے انسان ادراک کی منزلوں میں پہنچتا ہے، یعنی کسی چیز کا درک کرنا، کسی چیز کو ادراک کی سرحدوں میں داخل کرنا، یعنی ادراک ہوگا ہدف اور سننا ہوگا وسیلہ۔ ہر صدا کو، ہر آواز کو کانوں تک پہنچنے کو ہم سم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی میں احساس و ادراک کا موضوع بہت مہم ہے، جس کو سینسیشن اینڈ پرسیپشن کہتے ہیں، یا فیلنگ اینڈ پرسیپشن۔ یعنی کیا؟ یعنی جو انسان نے اپنی حواس پنجگانہ سے یا حواس خمسہ سے جو لیا ہے بدن تک پہنچایا ہے، اب بدن نے اس کو مغز تک پہنچانا ہے، اور ایک میکینزم ہے، اس میکینزم کو بروئے کار لا کر انسان ادراک کرتا ہے، کسی چیز کا درک حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو چیز انسان نے سنی ہے یا جو چیز انسان نے دیکھی ہے یا اور بقیہ حواس کے ذریعے جو چیز اس تک پہنچی ہے، اب اس کو میکینزم کے ذریعے ادراک کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک انسان کو دیکھیں کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اور گاڑی ڈرائیو کرتے وقت اس نے فوراً دیکھا اپنی آنکھوں سے ٹریفک لائٹ کو، اور وہ ٹریفک لائٹ ریڈ ہے۔ اب یہ انسان اس ٹریفک لائٹ کو ریڈ دیکھنے کے بعد اگر ادراک کرے اور اس کا معنی سازی کرے اور اس میکینزم کے ذریعے اپنے دماغ میں اس کا مطلب دے، تو اس کو بریک لگا کے رک جانا چاہیے۔ مگر اگر وہ دیکھنے کے باوجود بھی بریک نہیں لگاتا، یعنی ہم یہاں پر کہیں گے کہ اس کی حواس جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس نے دیکھ تو لیا ٹریفک لائٹ کو، مگر اس کے دماغ نے، اس کے مغز نے پروسیس نہیں کیا، اس کو ادراک کے مرحلے میں داخل کر کے اس کا معنی نہیں دے سکا۔ بس یہاں پر ہم نے بتایا کہ بات کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے سننے کی ضرورت پڑتی ہے، اور سننا ہے ایک ہنر۔ اسی طرح آپ مختلف مثالیں لے لیجئے، آپ اسکول میں درس لے لیجئے، یونیورسٹی کا لیکچر لے لیں، مجلس و منبر کے بیان، جمعے کے خطبے، قرآن و حدیث کی تعلیمات، معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے ارتباط دیکھ لیں آپ، یا خبریں ہوں یا اور کچھ سیاسی تجزیے کرنا۔ ان ساری چیزوں میں انسان کو سننے پر مہارت اگر حاصل نہ ہوئی تو پھر وہ ادراک والے مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرے گا۔ یعنی اسی طرح ہم دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں، کچھ آوازیں آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں، اور کانوں تک آواز آ گئی اور اس کو آپ نے کہا کہ میں نے سماعت کر لیا۔ نہیں، اس کو کامل طور پر سماعت نہیں کہتے۔ یعنی ہواؤں کے ذریعے جو ذرات آپ کے کانوں تک پہنچے ہیں، اور وہ کان کا جو پروسیسنگ ہے، 3 کان کے حصے ہیں، ایکسٹرنل، مڈل، انر، اور یہ تینوں حصوں کے ذریعے آپ تک کوئی بات پہنچ گئی، آپ کے کانوں کی ہڈیوں تک کوئی بات پہنچ گئی، تو اس کو سماعت تعبیر نہیں کرتے۔ سماعت اسے کہتے ہیں جب میکینزم کے ذریعے کسی سننے والی چیز کو آپ ادراک کے مرحلے میں لے جا کے اس سے کچھ معنی بھی اخذ کریں۔ اسی طرح ہماری دی گئی مثالوں میں آپ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہ درس پڑھتا ہے، مگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ تفاوت ہے، فرق ہے اس کی سننے کی ایبلٹی میں اور اس کے ادراک۔ وہ جو درس لے رہا ہے، وہ جو ٹیچر اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے، ایک انسان اس کو سمجھ پا رہا ہے، دوسرا انسان اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اسی طرح آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ لیں، جب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس کچھ کلاس میں کچھ سنتا ہے
तो उसको इदराक कर पाता है या नहीं। इसी इदराक के जरिए वो कुछ माना दे सकता है, वो जो चीज उसको समझाई जा रही है उसको अखज़ कर सकता है। जबकि हम देखते हैं कि मिंबर और मजलिस के बयान भी इसी तरह से, यानी सुनने वालों का उन पर असर नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? इसीलिए कि लिसनिंग इज एन आर्ट, सुनना एक फन है, एक हुनर है, और इस इंसान ने उस हुनर पर अपनी गिरफ्त मोहकम नहीं की, जिसकी वजह से अब ये कानों तक इसके आवाज तो पहुंच रही है बहुत सारी चीजों की। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे सालियाने साल मिंबर और मजलिस में जा रहे हैं, अच्छी बातें, नेक बातें, मोटिवेटेड लेक्चर्स, ये सारी चीजें सुनते तो हैं, मगर वो फिर अगले साल या फिर वो अगले महीने उसी जगह मौजूद हैं जहां वो पहले थे। इसके पीछे यही समाअत का उन्सुर पोशीदा है, जिसको हम आज तक कह रहे थे कि सुनना, असल में वो सुनना नहीं होता। आज हमारी कौम की हालत देख लीजिए कि मुआशरे में मुतअद्दिद जंग व जिदाल, इसके पीछे यही समाअत का उन्सुर पोशीदा होता है। यानी एक इंसान दूसरे इंसान की बात को सुनकर समझ नहीं पाता, उसका इदराक नहीं कर पाता। इसी तरह आप देखें कि मुख्तलिफ उलमा नुमा लोग मुख्तलिफ पॉडकास्ट में आते हैं और वो अपने बातों को बयान करते हैं, मगर आप ये दिक्कत करें कि एक इंसान की बयान करदा बात बराबर में बैठे हुए बंदे की अकल में नहीं घुसी, वो उससे इदराक नहीं कर पाता, और फिर वो अफसोस भी करते हैं कि मुझे अफसोस है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हमने जिसे समाअत से ताबीर किया है, एक्चुअली वो समाअत है ही नहीं। मुख्तलिफ आवाज़ों का कानों तक पहुंचने को तो समाअत नहीं कहते। इसी तरह हमारे मुआशरे में एक जुमला इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जुमला? ये बिल्कुल हमारे मौजू से रिलेटेड है। हम जहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि समाअत और चीज़ है, और आवाज़ों का, सदाओं का कानों तक पहुंचना और चीज़ है। भैंस के आगे बीन बजाने की कहावत कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां पर एक इंसान को आप कुछ बात समझाते रहें, बोलते रहें, मगर वो समझ ना पाए, वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो इदराक नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सुनने की महारत पर उबूर हासिल नहीं कर सका है अभी तक। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको जितनी भी बात समझा लो, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आती। आवाज़ का पहुंचना और चीज़ है और समाअत करना और चीज़ है। समाअत या सम कहते हैं सुनी गई बात को इदराक के मरहले में ले जाके उससे नतीजा अखज़ करना। इसी तरह आप मुआशरे में सियासी और मजहबी तज्ज़िये देख लें, इन लोगों की सलाहियत देख लें, सोचने समझने की सलाहियत देख लें, ये कितना हौसला रखते हैं किसी बात को सुनने का। आप दो इंसानों को देखें, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मगर अपने दिमाग से बातों को एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं, मगर सुन नहीं रहे होते, समझ नहीं रहे होते, क्योंकि इदराक नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। इसी तरह आप जवानों के भड़के हुए जज्बात देख लें। एक इंसान को कोई बात बताई जाए, उसके जज्बात फौरन भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं? क्योंकि इसने सुनने की महारत हासिल नहीं की, इसे नहीं पता कि बात को सुनने के पीछे कौन से अवामिल पोशीदा होते हैं, ताकि इस सुनने के बाद मैं इससे इदराक भी कर सकूं। इसी तरह हम देखेंगे कि शीरीन कलमात के ज़रिए लोगों को धोखा देते हैं, नुकसान उठाते हैं ना लोग, इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं बातों से। क्यों बातों से बेवकूफ़ बने हैं? क्योंकि बात को सुनी है, इदराक नहीं किया सही तरह से, बात को समझे नहीं है, सामने वाले को परखा नहीं है, सिर्फ सदाओं के कानों तक पहुंचकर कोई फैसला कर लिया है, जिससे इसको नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस मुकद्दमे को जो हमने दुरुस्त किया है समाअत की जेल में, अब हम वो आयत कुरानी यहाँ पर कोट कर रहे हैं जो सूरह आराफ में आयत 198 में मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ। ये आयत का एक जुमला है सुनने से रिलेटेड, और इसी आयत का एक और जुमला है बसर से रिलेटेड, जो इसके बाद हम बयान करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला पैगंबर को कह रहा है कि इन तदऊहुम इलल हुदा, जब तुम इन लोगों को दावत दोगे इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यस्माऊ, तो ये नहीं सुनेंगे या ये नहीं सुन रहे। ये लोग जिनको पैगंबर दावत दे रहे हैं, ला यस्माऊ, ये यस्माऊ का सीगा वही सीन मीम ऐन से है, यानी यानी समाअत। इस आयत को पढ़ने के बाद और इसके सादा से तर्जुमा या ज़ाहिरी तौर पर देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस आयत में 3 फर्जिए निकलते हैं। यानी इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्माऊ, कि आप इन लोगों को दावत दे रहे हैं, जब आप इनको दावत देते हैं हिदायत की तरफ, तो ये सुनते नहीं है, ला यस्माऊ। पहला फर्जिया ये है कि तमाम मुशरिकीन बहरे थे।
ان کی سماعت کی قدرت تھی نہیں، یہ ایک پہلا فرضیہ ہو گیا۔ دوسرا فرضیہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہ لوگ بہرے تھے، ان کی سماعت کی قدرت نہیں تھی، یہ دوسرا فرضیہ ہو گیا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی پر ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو یہ دوسرا فرضیہ باطل ہے کہ پیغمبر جن کو دعوت دے رہے ہیں یعنی وہ بہرے ہیں، بہروں کو دعوت دے نہیں سکتے پیغمبر حکیم و دانا ہے۔ تیسرا فرضیہ یہ ہے کہ پیغمبر جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ باتوں کو سن تو رہے ہیں مگر ان باتوں کو سننے کے بعد ادراک نہیں کر پا رہے، وہ پیغمبر کی ہدایت کی طرف دعوت دینے کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کے کانوں تک پیغمبر کی صدا پہنچ رہی ہے مگر وہ لوگ اس کو میکینزم میں نہیں ڈال پا رہے، وہ اس سے معنی نہیں لے پا رہے کہ پیغمبر ان سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ ہمارا تیسرا فرضیہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی کی بعد والی آیت پر نگاہ کریں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی خداوند پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیں اور اعراض کریں جاہلین سے، یعنی جاہلوں سے مت الجھیں۔ پس ہمارا تیسرا فرضیہ درست ثابت ہوا ہے، یعنی نہ تمام مشرکین بہرے تھے، نہ وہ لوگ بہرے تھے جن کو پیغمبر دعوت دے رہے تھے ہدایت کی طرف، یہ لوگ پیغمبر کی آوازوں کو سنتے تھے مگر جاہل تھے، جاہلانہ بحث و مباحثہ کرتے تھے پیغمبر سے، تو پیغمبر کو خطاب یہ ہوا کہ یہ لوگ لا یسمعو ہیں، آپ کی صدا کو سن تو رہے ہیں کانوں سے مگر اس کو ادراک نہیں کر پا رہے۔ بس یہاں پر صیغہ لا یسمعو قرآن نے جو یوز کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ سماعت کے موضوع میں چند آیتیں اور پیش کر دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات کو کہ ہم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ کہ یہاں تک ہم نے کہا کہ ہر وہ صدا جو انسان کے کانوں تک پہنچے اسے سماعت نہیں کہتے، اسے یسمعون نہیں کہتے، اسے سمع نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آوازیں جو انسان کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں اس پر اس کا ادراک بھی حاصل ہو۔ سماعت کے لیے دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ اس سے پہلے کا جملہ ہے جو بہت مشہور آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسان جانور ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سنا ہے نا ہم نے یہ آیت؟ کیا آیت ہے وہ آیت یہ ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اسی جملے سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے دو کان ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں ہیں، سماعت نہیں فرماتے۔ دو کان ہیں، جب دو کان ہیں تو بہرے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ ان کے آذان ہیں یعنی دو کان ہیں، پس اس کانوں کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے انسان کا صداؤں کو کیچ کرنے کا وہ ایکٹیو ہے، وہ فعال ہے مگر یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ خدا فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، پیٹھ نہیں پھیرو، بھاگو نہیں، جو تم نے سن لیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اب تم اس کی طرف پیٹھ مت دکھاؤ۔ وَلَا تَوَلَّوْا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، در حال کہ تم لوگ سن چکے ہو۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سن چکے ہو، ادراک کر چکے ہو، درک کر چکے ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، جو کہ رسول اور خدا نے بولا ہے اس پر پیٹھ نہیں دکھانی ہے۔ اسی کے بعد والی آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے، یہ بہت جذاب ٹکڑا ہے۔ سورہ انفال آیت 20 اور 21۔ آیت 21 کیا کہہ رہی ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور مت بننا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جو یہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہمیں آواز آ گئی، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جبکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بس یہاں پر ہمارا موضوع بہت کلیئر ہو گیا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سن لیا،
हमारे कानों तक आवाज पहुंच गई। बहुत से लोग हैं ना, जब आप कोई चीज उनको समझाना चाहें तो वो कहते हैं ना, बस सुन लिया, हमने सुन लिया। कुरान कह रहा है कि उन लोगों की तरह ना होना जो ये कहते थे कि सुन लिया, जबकि वो ला यस्माऊन के मिज़दाक थे। वो सुनते नहीं थे, वो सुनी हुई चीजों का इदराक नहीं करते थे। बस हमें सुनी हुई चीजों का इदराक करना है। जब हम इदराक कर लेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे यस्माऊन के दायरे में, फिर हम पहुंचेंगे समाअत के दायरे में। इसी तरह जब हमने कहा कि लिसनिंग इज एन आर्ट है, सुनना एक फन है, एक हुनर है, तो इस हुनर को सीखा जाता है और इस पर दिक्कत की जाती है। हम यहाँ पर मुख्तसरन सिर्फ 3 इस्तिलाहात को जिक्र कर रहे हैं। इंसान को कोई बात को सुनने के लिए, समझने के लिए 3 तरह के इस्तेमाल पर महारत हासिल रखनी चाहिए। वो 3 तरह के इस्तेमाल कौन से हैं? एक है इस्तेमाल मंतिकी, दूसरा है इस्तेमाल इर्तिबाती, तीसरा है इस्तेमाल तफज़ीली। अब ये कोई सोचे ना कि ये तो इस्तिलाहात ही इतनी मुश्किल हैं, मैं जब इस्तिलाहात ही मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं सोचूंगा कैसे, मैं समझूंगा कैसे। बहुत ही आसान है, या इसको मजीद आसान करके आपके सामने बयान कर देते हैं। इस्तेंबात मंतिकी, इस्तेंबात कहते हैं किसी चीज़ को अख्ज़ करने को, किसी चीज़ को निकालने को, किसी भी बात से, किसी सुनी जाने वाली बात से, किसी पढ़ी जाने वाली बात से, या और किसी हवाले से। इस्तेंबात मंतिकी कहते हैं लॉजिकल इन्फ्लुएंस। इस्तेंबात मंतिकी में सिर्फ कलमात या जो स्टेटमेंट हैं, सादा स्टेटमेंट, उनको देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है, कोई चीज को समझी जाती है। मिसाल के तौर पे एक इंसान के पास अगर 2 कोटेशंस आ जाएं, 2 लॉजिकल स्टेटमेंट्स आ जाएं, तो वो तीसरी लॉजिकल स्टेटमेंट खुद उसमें से निकाल लेता है। आप मिसाल लीजिए कि एक स्टेटमेंट है, जब भी तूफान आता है दफ्तर बंद होता है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, जब भी दफ्तर बंद होता है मैं काम पे नहीं जाता, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट को सामने रखने के बाद एक फर्द जो महारत हासिल करना चाहता है, इस्तेंबात मंतिकी कहता है, लॉजिकल इन्फ्लुएंस कहता है कि जब तूफान आएगा तो ये बंदा दफ्तर या ऑफिस नहीं जाएगा। दुरुस्त है, लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने 2 सही स्टेटमेंट को सामने रखकर तीसरी स्टेटमेंट अक्स कर ली, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसी को कहते हैं लॉजिकल इन्फ्लुएंस, यानी इस्तेंबात मंतिकी। इसके बाद है इस्तेंबात इर्तिबाती। इस्तेंबात इर्तिबाती क्या है? इस्तेंबात इर्तिबाती यानी ब्रिजिंग इन्फ्लुएंस है, यानी इंसान का बातों के दरमियान इंसजाम और पैवस्तगी और तजुर्बे कबली, ये 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि एक इंसान है, उसकी बातों में ब्रिज नहीं है, उसकी बातों में कोई रब्त नहीं है। मसलन एक रोज आता है वो गुलूफ की तबलीग करता है, दूसरे रोज आता है वो नमाजी बन जाता है, तीसरे रोज आता है वो दोबारा मलंग बन जाता है, चौथी दफा आता है वो इनकलाबी बन जाता है, 5वीं दफा आप इसकी बात सुनेंगे ये गैर इनकलाबी बन जाता है और फिर इनकलाब के अगेंस्ट बयान देता है, और फिर 6ठी स्टेटमेंट देखेंगे ये कि तबलीग कर रहा होता है कि इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे इंसान की बात नहीं सुनी जा सकती। क्यों नहीं सुनी जा सकती? बस यही लिसनिंग इज एन आर्ट हमें बता रहा है कि अगर इंसान के बातों के दरमियान ब्रिजिंग इन्फ्लुएंस ना हो, इस्तेंबात इर्तिबाती ना हो, तो हम इसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, उसकी बात पे भरोसा करेंगे जो ब्रिज की सूरत में है, जो इर्तिबात के दायरे में हमें कुछ बताता है, यानी हमेशा एक ब्रिज की सूरत में हमें कोई बात पहुंचाता है, इसकी बातों में इंसजाम और पैवस्तगी पाई जाती है। तीसरा क्या है? तीसरा है इस्तेंबात तफजीली। इस्तेंबात तफजीली बहुत आसान है और हमेशा बाशऊर लोग इस इस्तेंबात तफसीली को इस्तेमाल करके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। एक मिंबर है, एक मजलिस है, एक बयान में इंसान दबे छुपे लफ्जों में कोई बात कह रहा है और इस्तेंबात तफसीली उसके जुज़ियात को अक्स कर रहा है, यानी ना कही गई बातों को भी अक्स कर रहा है, उसके समझ में आ रही है। इसको कहते हैं इस्तेंबात तफसीली, यानी इतना वो शार्प हो गया है, इतना उसने इस सुनने की एबिलिटी और महारत हासिल कर ली है इस पर कि अब वो ना कही गई बातों से भी, छोटे छोटे इशारों से भी बात को समझ पा रहा है। बस इसी को इस्तेंबात तफसीली कहते हैं। अगर एक इंसान के अंदर लॉजिकल, ब्रिजिंग और एलैबोरेटिव इन्फ्लुएंसेस आ जाएं तो फिर वो महारत हासिल कर लेता है लिसनिंग पर,
सुनने के फन पर उसकी महारत हासिल हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में नुकसान कम उठाता है और ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा सकता है लोगों की बातें सुनकर और उनको इदराक करके। इसी समाअत से रिलेटेड यहाँ पर बता दें कि एक इंसान की समाअत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इसको कहते हैं तफावुत फर्दी, यानी अवामिल हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान की लिसनिंग एबिलिटी, एक इंसान की सुनने की महारत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। यानी ये अवामिल तफावुत फर्दी दर समाअत हमें बता रहा है कि कोई भी दो लोग एक जैसा इदराक नहीं कर पाते, कोई भी दो इंसान इदराक वाले मामले में यकसान नहीं होते। मुमकिन है कही जाने वाली बात एक हो मगर इदराक करने वाले मुतफावित होंगे, फर्क करेंगे, और इनके फर्क करने के पीछे अवामिल हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो फिर हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त का लेवल बहुत ऊपर चले जाएगा और हमारी लोगों से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। हम कहते हैं ना, यार मुझे तो ये बात समझ में आ रही है, इस इंसान को क्यों बात समझ में नहीं आ रही? वो इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसके पीछे फैक्टर्स हैं, इसके पीछे अवामिल हैं। आपने उन अवामिल पे काम किया है, आपको बात समझ में आ रही है, जबकि दूसरी तरफ इंसान ने काम नहीं किया, उसको बात समझ में नहीं आ रही। ज़र्फ़ियत हाफ़िज़ा, इंसान की हाफ़िज़े की ज़र्फ़ियत, इंसान की मतालिब को हिफ्ज़ करने की ज़र्फ़ियत एक इंसान के मुकाबले में डिफरेंट है। दूसरा इंसान, उसकी ज़र्फ़ियत ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतालिब को हिफ्ज़ कर सकता है। एक इंसान की ज़र्फ़ियत कम है, वो नहीं कर पाता। इसी तरह कुव्वत इदराक भी है। इंसान कुव्वत इदराक के मामले में दूसरे इंसान की तरह नहीं है। दो इंसान, दोनों में फ़र्क है। एक इंसान अच्छा इदराक करता है, उसकी कुव्वत ज़्यादा है, एक इंसान कम इदराक कर पाता है। तो इन दोनों को आपस में झगड़ना नहीं है। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि कुव्वत इदराक है, उसने अपने इदराक की एबिलिटी को पॉलिश नहीं किया है। इसके बाद है वक्त का सर्फ करना, ये भी एक आमिल है। जो इंसान जितना भी ज़्यादा समझने के लिए, सुनने की महारत के लिए वक्त का सरमाया लगाएगा, वो उतना ही ज़्यादा इसमें माहिर बनेगा। इसके बाद है जहानबीनी। जहानबीनी यानी वही वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू में आप देखते हैं एक इंसान वो दुनिया को कैसे देखता है, ये बहुत ज़्यादा असर करता है इंसान के सुनने समझने की सलाहियत पर। जहानबीनी, एक इंसान की जहानबीनी मादी है, एक इंसान की जहानबीनी मानवी है, एक इंसान की जहानबीनी 50-50 है। ये तीन फर्द एक तरह की तो बात को नहीं समझ सकते। जो इंसान जिस तरफ माइल है वो वही मतालिब को सुनना और इदराक करना पसंद करता है। इसके बाद है अहदाफ ज़िंदगी। मुख्तलिफ अहदाफ ज़िंदगी हैं। एक इंसान का हदफ ज़िंदगी कुछ और है, दूसरे इंसान का हदफ ज़िंदगी कुछ और है। अब ये दोनों इंसान जिनके हदफ ज़िंदगी डिफरेंट हैं, आप इनको एक बात एक तरीके से समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। इसके बाद है तमरकुज़। तमरकुज़ बहुत ज़्यादा मुहिम है अज़ीज़ान। तमरकुज़ अगर ना हो तो इंसान ना कुछ सुन सकता है, ना सुनकर समझ सकता है और ना ही इदराक पा सकता है। कैसे? इंसान के दिमाग में बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात फ़आल होते हैं। जब वो ख़यालात फ़आल होते हैं तो वो इसकी लिसनिंग एबिलिटी पे भी असर डालते हैं और इसके इदराक पर भी। मुमकिन है ये कानों से बहुत अच्छी बातें सुन रहा हो, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ रहा हो, बहुत अच्छी चीज़ें देख रहा हो, मगर ये इदराक नहीं कर पाता। क्यों इदराक नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके जहन में ख़यालात फ़आल हैं। वो मुमकिन है इक़्तिसादी शराइत की वजह से हों, वो मुमकिन है ख़ानवादगी की शराइत की वजह से हों, वो मुमकिन है मुख्तलिफ़ मुश्किलात और मुसीबतों का शिकार हो और उस आलम में वो कुछ सुन रहा है। अब ये जो सुन रहा है इसको वो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। अब ये जो सुन रहा है वो इसको इदराक वाले मरहले में तो नहीं लेके जा सकता। कैसे? इसीलिए कि अवामिल फ़र्दी मुख्तलिफ हैं। दो लोग एक जैसी बात का इदराक नहीं कर पाते। यहाँ पर आखिर में हम ये समाअत के मौजू में बताते हैं अज़ीज़ान के समाअत में हम ज़ियारत आले यासीन में पढ़ते हैं कि सलामुन अला आले यासीन, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह। हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सलाम भेजते हुए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो, या दाई अल्लाह, ए अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। तो यहाँ पर समाअत का मौजू बहुत मुहिम हो जाता है अज़ीज़ान। इमाम मेहदी हमें अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, हमें इदराक नहीं हो पा रहा है। हम इन चीज़ों को, हम इन ज़ियारत के कलमात को सुनने के बाद इसको इदराक नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोटिवेशनल बयानात को सुनने के बाद
ادراک نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے۔ بس جب نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر ہم لا یسمعو کے مزاق بنیں گے، کہ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، جب تم پیمبر ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا یسمعوا، یہ نہیں سنیں گے، یہ نہیں سن رہے تمہاری بات کو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی جب ہمیں دعوت دیں گے اللہ کی طرف تو شاید ہم نہ سن پائیں، اگر ہم نے اپنے سننے کی مہارت پہ کام نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ادراک کی مہارت پر کام نہیں کیا تو خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک، کہ خدا ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں۔ اس آیت کو دوبارہ کوٹ کرتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جن کے کانوں تک آواز تو جاتی تھی، جو کہتے تو تھے ہم نے سن لیا، ہمارے کانوں تک آواز آ گئی، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر وہ لا یسمعون تھے، وہ سنتے نہیں تھے۔ سماعت کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب سماعت کے بعد بصر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ بصر اسی آیت میں اگلی کوٹیشن ہے، یعنی خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، کہ ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے پیمبر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ دیکھ نہیں رہے۔ آیت کا سادہ ترین ترجمہ کریں تو ظاہر آیات سے ہمیں یہ ملتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہاں پر تین ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں، ایک ترا رؤیت سے ہے یعنی دیکھنا، دوسرا ہے ینظرون جو نظر سے ہے یعنی دیکھنا، اور تیسرا ہے یبصرون بصر سے ہے یعنی دیکھنا۔ یعنی ایک آیت میں تین دیکھنے کے ٹرمنالوجیز کو اللہ استعمال کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں ہدایت لینی ہے، اسی سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصر کو کیسے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ بس آیت کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا کہ اے پیغمبر جب آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے، اور آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ دیکھ نہیں رہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر، بصر اور رؤیت کے معنی جاننا ہے کہ تینوں کو کیا کہتے ہیں۔ نظر کہتے ہیں سر کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا، بصر کہتے ہیں دل کی آنکھ سے کچھ دیکھنے کو، اور رؤیت کہتے ہیں ظاہر اور باطن کو ایک ساتھ، یعنی آپ کے سامنے منظر پوشیدہ نہیں ہے، عیان ہے۔ اسی لیے اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیمبر کے لیے رؤیت کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور مشرکین کے لیے نظر کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ وہ سر کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ ظاہر و باطن سے رؤیت کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ اس حالت میں ہے کہ بصیرت نہیں ہے ان کی طرف، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں آپ کو، آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھ پا رہے، صرف شخص کو دیکھ رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی نظر، بصر اور رؤیت کے لیے ہمارے پاس قرآن میں آیات موجود ہیں متعدد، کہ یہاں پر صرف ایک ایک آیات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، یہ یہاں پر نظر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کہہ دیں اے پیغمبر کہ زمین پر سفر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد ہے بصر، بصر سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، بصر سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کس پر؟ ان کے قلب پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی بصیرت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ رؤیت کے بارے میں ہمارے پاس آیت ہے کہ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان کے بارے میں کہ خدا انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، یہ خود ابلیس اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ رؤیت یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے، کیوں کہ ہم نے شیطان شناسی والے باب میں بتایا تھا کہ ابلیس کو کچھ قدرتیں، کچھ پاورز دی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد آدم کو یہ دیکھے
मगर औलाद आदम इसको ना देख सके। इसी बात को कुरान ने दोबारा कोट किया कि मिन हैसो ला तरौनहुम, ये ऐसी जगह से शैतान तुम्हें देखता है कि तुम इसे देख नहीं पाते। इसी रोयत के वर्ड को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पैगंबर को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह देख रहा है आपको जब आप कयाम करते हैं नमाज के लिए, व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, जब आप चहलकदमी करते हैं साजिदीन के दरमियान तो अल्लाह आपको देख रहा होता है। तो अल्लाह ने अपने लिए रोयत का वर्ड इस्तेमाल किया है, पैगंबर के लिए रोयत का वर्ड इस्तेमाल किया है, मगर मुशरिकीन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? मुशरिकीन के लिए नज़र का इस वर्ड इस्तेमाल किया है कि सर की आंखों से देख रहे हैं। इनमें बसीरत नहीं है कि वो देख सकें कि आपकी शख्सियत कितनी ऊंची है। बस यहाँ पर रोयत और नज़र मुख्तलिफ है और बसीरत और अब्सार मुख्तलिफ है। रोयत और नज़र में 3 इकसाम पाई जाती हैं। कौन सी इकसाम है? पहली इकसाम है सर की आंखों से देखना, नजर करना सर की आंखों से। दूसरी इकसाम है किसी फर्द के अंदेशे को देखना, किसी फर्द के फिक्र को देखना। जैसे रिवायत में हमें मिलता है ना, कहते हैं मन नजर फी हलालिना व हरामिना, और जो शख्स देखे हमारे हलाल को और हमारे हराम को। जैसे हम कहते हैं किसी फर्द के कुछ कहने पर नजर सानी करें। नजर सानी क्या कहते हैं? यानी नजर करें उसकी फिक्र पर, उसके अंदेशे पर। तीसरी किस्म है शहूदी। ये जो हम शहूदी कह रहे हैं यही हमारी बसीरत है, जिसको हम कह रहे हैं कि इंसान सर की आंख से नहीं दिल की आंख से बहुत सारी चीजें देखता है जो सर की आंखों से मुहाल है देखना। बस बसीरत जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बसीरत हमें बताती है कि सर की आंख से नहीं दिल की आंख से देखा जाता है। कुछ वाक़यात मावराए तबीई हमें बसीरत से देखना है, कुछ वाक़यात रूहानी और मानवी हमें बसीरत की आंख से देखने हैं, न कि नज़र से, न कि सर की आंख से। इंसान बेबसीरत वो होता है जो गलत और सही को फर्क नहीं कर पाता, उसमें बसीरत ही नहीं होती कि गलत और सही में तशकीक कर सके, इनको आपस में जुदा कर सके। बस इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि बसीरत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में बसीरत ना हुई तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ से खो देंगे, बहुत सारे मानवी हादसात को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खुदा से नज़दीक कर सकती हैं। बसीरत अगर आपके अंदर ना हुई तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा नहीं कर सकते, उस शहूदी कैफियत में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हम इस आयत को कामिल तिलावत करते हैं और देखते हैं कि समाअत और बसर से रिलेटेड जो हमने गुजारिशात दी हैं कि अब हम इसको बेहतर समझ सकते हैं या नहीं। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैक व हुम ला युबसिरून। ए पैगंबर, जब आप इनको हिदायत की दावत देते हैं, हिदायत की तरफ बुलाते हैं, तो ये आपकी बात नहीं सुनते और आप इनको देख रहे हैं कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं जबकि ये आपको नहीं देख रहे। तो बस यहाँ पर हम बेहतर समझ सकते हैं कि कुरान जिसे ला यस्माऊ कह रहा है, यानी जिनकी समाअत पर मोहर लग गई है, और कुरान जिसे ला युबसिरून कह रहा है, यानी जिसकी बसीरत पर और जिसकी दिल की आंखों पर पर्दा या गिशावा डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ला यस्माऊ और ला युबसिरून से पीछा छुड़ाना है। कम से कम ऐसी कोशिश करनी है कि हमारा इतलाक इन दो गुरोहों में ना हो। अजीज़ान, कुरानी आयात से हिदायत के तालिब बने, कुरानी आयात को डंडा बनाकर दूसरों को आज़ार और अजियत ना दें। दुरुस्त है कि शान नुज़ूल और तफसीर और तावील को हमें समझना है, मगर शान नुज़ूल से वो आयत मुक़य्यद तो नहीं हो जाती। यानी एक आयत है कुरान में मौजूद है और वो फुलान शख्सियत के लिए या फुलान गुरूह के लिए नाजिल हुई है, इसका शान नुज़ूल ये है, मगर इसका शान नुज़ूल होना इस बात की ज़मानत नहीं करता कि ये आयत अब इस दुनिया में आज के लिए मेरे लिए हिदायत नहीं है। बिल्कुल हिदायत है। शान नुज़ूल भी समझना है, यानी माना को दर्क कर सके, मफहूम को दकीक हम फहम में ला सकें। मगर उसी आयत से हम आज अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। खुद को हिदायत से, खुद को कुरानी आयात को समझने से बरी मत करें। हमेशा फ़िक्र करें कि ये आयत कुरानी, ये आयत मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे लिए आज हिदायत बन सके। बस यहाँ पर हमने बताया कि बात को सुनना एक महारत है, लिसनिंग इज़ एन आर्ट है, और इस महारत और इस फ़न को हमें मोहकम गिरफ्त हासिल करनी है इस पर।
बसीरत के बाब में हमने बताया कि देखना भी एक आर्ट है। देखना सर की आंखों से नहीं है, सर की आंख से देखने पर इक्तिफा नहीं करना है, दिल की आंखों से देखना है और अपने अंदर बसीरत पैदा करनी है। इस दर्स में बताए गए जो तफावुत फर्दी के अवामिल हमने बयान किए हैं, उन पे ज़रूर काम करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में मुहकम करना है, अपने गलत अकीदों को समाअत और बसीरत से गिरबाल करना है। शहूदी कैफियत में जाके बहुत सारी चीज़ों को समझना है, ना कि सिर्फ सरसरी सी बात सुनकर या सरसरी सी किसी चीज़ पर निगाह करके। शहूदी कैफियत में जाएंगे तो वो मतालिब मावराए तबीई या मतालिब मानवी हमारे शामिल हाल होंगे। अपने अंदर उबूदियत की सिफात को कायम करना है। जब उबूदियत की सिफात कायम होंगी तो इंसान कहता है कि उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.